Namaskar, everyone. I am Ravi Gupta. I am the founder and CEO of Elite Technomedia, and we have been talking about IT for India and IT for Bharat for almost 20 years now. We have been publishing magazines on e-governance, e-health, uh, uh, also on e-education, and also on banking and finance. And we have been uh, driving the conversations for taking IT to the masses and especially in the rural India and for the Bharat. And in this context, it's a pleasure to have with us Mr. Ankush Sabarwal, who is the founder of ChatGPT. Sorry, I'm using like ChatGPT so much that I'm talking ChatGPT, who is the founder of Bharat GPT. So, Ankush, welcome on this show. Thanks for being here. Thank you so Thank much. you so much, Elet's team, Ravi sir, Anurag, everyone for having me here. Yeah. So, Ankush, I think let's start with discussing that how did this idea about having Bharat GPT emerge and how it the whole idea evolved. बिल्कुल मैं पहले तो बोलूँगा कि ये दिस इज नॉट द रेवोल्यूशन दिस वाज एक्चुअली द एवोल्यूशन बिकॉज वी स्टार्टेड AI, conversational AI, around 9 years ago. Apparently, one of the very few companies or in few spaces, we were the first company who have launched human-centric conversational AI in India. I'll discuss very, very useful use cases we launched many years ago, and they're still live. Um, Millions of people are using it. And since we had a lot of conversational data with which our customers, organizations were happy, trusting us, and the end users, citizens were using it. And we had seen even the old people, the average user which we have, age of the average age of the users which we have is more than 45 years age, even 50 years age, even 70 years age people also use our platform. So we try to make any technology accessible, more of democratizing technology so that everyone could use the benefit, and people have actually used. We did not just launch it to make the press release. People had actually used it. And since we had so much data, and as we know, India, multiple languages, multiple dialects, and we fortunately had all the data, which is key ingredient for any AI system to make. And uh, yeah, so I think all the experience we have, the trust of the organizations and the citizens we have, we got so much data. And then we have created our own India's first sovereign AI LLM, Bharat GPT. And now the good thing was, again, we created and again being adopted by again thousands of organizations and more than a billion users now. I think highest number of users if you compare with any AI LLM company across the globe. I think it's all the trust and uh, the adaptability which India has seen. So yeah, so it was not just our idea; it was the need and ask of our users who were already trusting us, and उनको हमसे भारत GPT चाहिए था, and we build it with their support, and they are using it. फैंटास्टिक. सो ये जो भारत जीपीटी है, ये चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी या और भी ऐसे जो मॉडल्स हैं, उनसे ये किस प्रकार अलग है? हाउ यू डू डिफरेंशिएट दैट? बिल्कुल. See, ChatGPT, Gemini, they are general purpose LLMs की कुछ भी आप पूछ दो. मतलब who is the Prime Minister of India, Chief Minister of Delhi, कुछ भी आप उनसे पूछो. एंड मुझे इंडियन फूड बैंगलोर में कहाँ मिलेगा, नॉर्थ इंडियन कहाँ मिलेगा, चाइनीज़ कहाँ मिलेगा, यूएस में कहाँ मिलेगा. सो मुझे इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, मुझे ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, राइट, मुझे कौन सी
प्रॉब्ली इवन दवाई भी खानी चाहिए. मैंने कुछ AI एजेंट्स देखे हैं, दे इवन गिव द मेडिसिन नेम्स आल्सो. सो दे आर जनरल पर्पस, राइट. वो एक पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं और दुनिया की हर प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं. They have picked a big problem to solve. Have they solved? So it depends upon the users if they are happy or not. हमारा we don't have that aspiration कि हम दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और दुनिया के हर यूजर्स के लिए हम वैसा नहीं. सो वी क्रिएटेड दिस मॉडल भारत जीपीटी. मेन उसका फोकस ये था कि इट अंडरस्टैंड्स इंडियन कन्वर्सेशन, टेक्स्ट एंड वॉइस इन वेरियस लैंग्वेजेस. अब वो नॉलेज कौन सी है? अगर कोई हमसे पूछता है कि मुझे योगा करना चाहिए या नहीं और कैसे योगा करना चाहिए, सपोज भारत जीपीटी से पूछता है, तो भारत जीपीटी शायद वो आंसर नहीं कर पाएगा. वो तभी करेगा जब हम उस डोमेन एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, वो जो डोमेन एक्सपर्ट है. हम डोमेन एक्सपर्ट नहीं, हम तो एआई और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं. अगर हम ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अगेन हम डोमेन एक्सपर्ट नहीं है. वो इंडियन रेलवेज है, वो आईआरसीटीसी है, तो हमने उनके साथ टाई अप किया. तो जो आस्क दिशा है जो आईआरसीटीसी में, उसमें आप जाके ट्रेन के बारे में पूछो, अपने पीएनआर के बारे में पूछो, रिफंड स्टेटस पूछो, टिकट भी बुक करो, आप कैंसिल भी, राइट, पेमेंट भी आप कन्वर्सेशनल वे में दो. तो वो हम कर पाए बिकॉज ऑफ आईआरसीटीसी. अब डिजिटल पेमेंट क्या होती है, पिन गुम हो गया तो क्या करें, यूपीआई में क्या ऑफर चल रहे हैं, अच्छा मुझे अपने कार्ड को ब्लॉक करना है. तो अगर इस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आईआरसीटीसी के जो एआई एजेंट आशीष शाह है वहाँ पे नहीं मिलेगी. और शायद ये जो जनरल पर्पस एलएलएम से शायद वो भी नहीं इतना बता पाएंगे स्पेसिफिक अपडेटेड इंफॉर्मेशन. वो हम बताएंगे क्योंकि हमने वहाँ पे फिर एनपीसीआई के साथ टाई अप किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई बनाया है, उसने रेवोल्यूशन की. उसको तो हम एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, एनपीसीआई हैज एक्चुअली डन द रेवोल्यूशन. तो डिफरेंस यही है. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी जैक ऑफ ऑल एंड ट्राइंग टू फिक्स एवरीवन्स प्रॉब्लम. हम डोमेन एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और अपना एआई एक्सपीरियंस जोड़ के हम एक जॉइंटली एआई एजेंट बनाते हैं जो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी जो उसको यूज करती है और रियल टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है. और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर नहीं है जो बाकी हैं, हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन भी करेंगे. और वो सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस नहीं है, वो वीडियो भी है. मींस कि अगर किसी को सीईओ से बात करनी है उस कंपनी की और वर्चुअली गोस्ट वॉइस नहीं आएगा, वो सीईओ खुद डिजिटल ट्विन की तरह आएगा या ब्रांड एम्बेसडर आएगा बेस्ड ऑन जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस होंगे या नीड होगी. तो वी हैव डन वेरी होलिस्टिक. अगर हम एआई एजेंट बोलते हैं तो हम उसको ह्यूमन सेंट्रिक एजेंट बोलते हैं कि कोई भी बॉट से सर बात नहीं करना चाहता, राइट. सो यू योरसेल्फ टॉकिंग टू मी. मैं अपनी टीम से पूछा कौन आएगा, कहते पता नहीं. तो आई was not expecting you, and it's a big thing you yourself are coming and talking. So no one can actually replace the benefit of meeting face to face नहीं, चलो हम वीडियो कॉल करते हैं. तो सिर्फ टेक्स्ट वॉइस रोबोट से कोई बात नहीं करना चाहता. थोड़ी देर ठीक है खेलने के लिए, बिजनेस यूज केस के लिए ठीक है, कभी पैसे बच जाते हैं, और इवन वी डोंट वांट ह्यूमंस टू डू द रिपीटेड थिंग्स. तो हमने वो थोड़ा ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक फील डाला. ऑथेंटिक डेटा के ऊपर हमने ज्यादा ध्यान दिया, इंटीग्रेशन के ऊपर. आप किसी भी एलएलएम में जाओ, आपको पीएनआर स्टेटस कैसे बताएगा, नहीं बता सकता, है ना. तो ट्रांजैक्शन बोलो टिकट बुक करके दे दे, वो ज्ञान दे देगा भाई ऐसे ऐसे टिकट बुक होती है. टिकट बुक करके देना, ज्ञान यहाँ लूँ, इंफॉर्मेशन किसी और से लूँ, और जाके आप सोच लो आपके पास 2 एजेंट हैं, उसको पूछो भाई मुझे माता वैष्णो देवी जाना है, तो बोलना ऐसे ऐसे जाओ, ट्रेन में जाओ, फिर वहां से टैक्सी ले लेना या ऐसे करना. बोलो टिकट मैं यहाँ से नहीं बुक कराऊंगा, मैं टिकट किसी और से बुक कराऊँ. यू अंडरस्टैंड? वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड एंड टू एंड कन्वर्सेशनल एआई एजेंट विच इज इंफॉर्मेशनल, एडवाइजरी, आपको एडवाइस भी करेगा और अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन भी करके देगा. और वैसे ट्रांजैक्शन करके देगा जैसे आप एक्चुअल रियल पर्सन से बात कर रहे हो. वो हमारी अटेम्प्ट है. कितना सक्सेसफुल है that that's probably debatable because we do multiple AI agents. हमारे अभी
वी हैव 25,000 यूजर्स हो गए हैं. यूजर्स इन द सेंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजेंट्स बना रही हैं, डेवलपर्स, रिसर्चर्स. फिर उसके बाद जो एंड यूजर्स हैं, इट्स मोर देन 1 बिलियन यूजर्स. तो सो परफेक्शन सब में लाना थोड़ा मुश्किल है. सो वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड फोकस ऑन फ्यू वर्टिकल्स की थोड़ा परफेक्शन की तरफ हम जाए. Sure. बट सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम एंड पीपल आर, आई थिंक, लाइकिंग. अमेजिंग वर्क. सो एक जो आपका जो मॉडल है, अब आपका जो बिजनेस मॉडल है, लाइक जहाँ पर यू आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक से रेलवे और अदर डिपार्टमेंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं. एंड कंपेयर टू दिस लाइक चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी आर मोर जेनरिक, लाइक दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीवन फॉर एवरीथिंग. बट कहीं पर आपका जो मॉडल है वो कहीं पर रेस्ट्रिक्टिव, मतलब आपको कहीं फील होता है कि जो एक आम इंसान है, जो आज अगर चैट जीपीटी से पूछ ले कि भाई कि मुझे आप बैंगलोर में रेस्टोरेंट बता दो, कहाँ खाना खाना चाहिए, तो बहुत जो है जेनरिक एक जो सवाल है. तो इस प्रकार का जो मार्केट आप जो लूज कर रहे हो, तो हाउ डू यू एड्रेस दैट फॉर योरसेल्फ? थैंक यू. आपने मैंने काफ़ी अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए हैं और हम डिस्कस करते रहते हैं. और ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, और लेकिन ये क्वेश्चन मैं रोज़ अपने आप से रोज़ पूछता हूँ. तो और नो दैट इज दैट कीप्स हॉन्टिंग मी. तो व्हाई वी आर लूजिंग ऑन इट. सी वी दो एक्सट्रीम्स है. एक तो वी हैव टू बी परफेक्ट इन 1 or 2 डोमेन्स. अब कोई भी, मुझे लगता है कि नेचुरल वे तो यही है कि आप पहले एक चीज़ को अच्छा करो, है ना, तो फिर चलो एक दूसरी चीज़ को भी अच्छा करो. तो फिर यूजर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप बोलो ठीक है, ये भी चीज़ हो गई, ये भी हो गई, आपको ट्रस्ट हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालते रहेंगे. नेचुरल वे है. लेकिन और बिजनेस भी अगर आप ट्रेडिशनली देखो तो ऐसे ही था, राइट. अगर आप कोई भी बिजनेस देख लो, किसी एक चीज़ से शुरू किया था, है ना, तो फिर वही सब कुछ. रिलायंस की बात कर लो या टाटा की बात कर लो, वो किसी एक चीज़ से शुरू हुए थे, है ना. देन दे गॉट द ट्रस्ट, दे गॉट मनी, दे गॉट एक्सपीरियंस, तो फिर वो ऐड करते रहे. तो आजकल मुझे पता है कि नाउ सिंस देयर लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टर, वीसी, अगर आप उनको समझ आती है बात, सो इट्स फैसिनेटिंग एंड इट्स ग्लैमरस कि हम सभी कंज्यूमर्स को इकट्ठे हेल्प करेंगे, राइट. तो एंड देन वी गेट डेस्परेट, वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजमेंट, फोर्स फिटिंग स्टफ कि भाई यूज करो यूज करो यूज करो. So I think though that is fascinating, that's business wise probably it looks like it makes good sense, but I think वो इतना natural नहीं है. If you have to go frugal way, you don't want to spend investors money so fast, है ना. ऐसा नहीं है कि यार पैसे डाल दो, है ना, go all in, सक्सेसफुल हुए तो हुए, नहीं तो कोई बात नहीं. इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टर्स माइंडसेट में भी, क्योंकि वो 100 कंपनीज में डालेंगे, चलो 10 तो सक्सेसफुल हो जाएंगी. बट अगर मैं सोचूं एंटरप्रेन्योर, एज एंटरप्रेन्योर, मैं वो 90 नहीं बनना चाहता जो फेल होंगी, जिसके लिए शायद इन्वेस्टर्स ओके होंगे. मुझे लगता है कि नहीं, वी हैव टू डू एवरीथिंग विच इज राइट वे, ट्रेडिशनल वे, इवन इफ टेक टाइम, इफ लेट इट टेक टाइम, बिकॉज नेचुरल वही है. अंबानी, टाटा, रिलायंस, अदानी, वो आई थिंक दे टुक टाइम, दे डिड एवरीथिंग इन द राइट वे. तो मेरे लिए वो आइडल है, ना कि न्यू एज स्टार्टअप्स विच आर ग्रोइंग फास्ट. They are doing good, but I don't have probably that mindset. Sometimes I Sure. envy, sometimes I respect them. I envy, but I know my strengths. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. और यहीं से एक और सवाल निकल के आता है अबाउट द फंडिंग, लाइक द जो इस जनरेटिव एआई में जो फंडिंग है आज, चैट जीपीटी या जेमिनी या ग्रोक या मेटा, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस है who have entered this field and they are with like massive funding. I think compared to that, the amount of
funding you have raised is like very very small. So how do you see like in a way competing with the giants out there? Yeah, again, thank you. You are really, while answering, I'm also doing introspection, and I deal with these kind of questions, to be very, very frank, myself, Mm, in my internal introspection every day, mm, because I cannot talk about all of these vulnerabilities with mm, with a team and with everyone. That's my daily mm, thing. See, mm, अभी मैं अगर आपको बताऊं, हमने जितना शुरू से mm, जितनी इन्वेस्टमेंट मांगी उतनी मिली, mm, जिस वैल्यूएशन में मांगी उस वैल्यूएशन में mm, मिली, not negotiated at all. We have very a lot of investors. They have trusted us, supported us. When most of our investors are good people, big people, where we can go for advice. They are not just with the money कि ये लो पैसे इसको डबल करके बताओ या 100 गुना करके बताओ. We don't have those kind of investors. So we have good investors. Either they are giving good advice, they are entrepreneurs, they are helping us go strategic investment. तो हमारी नेगोशिएशन भी नहीं हुई ऑन वैल्यूएशन. जितने हमें पैसे चाहिए थे, ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर ने नहीं दिए, बट वी गुड अदर इन्वेस्टर्स एंड वी गॉट. हम अभी अपने प्लान से ही चले. तो इसीलिए वो जो है कि बाकियों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले ली, दैट्स नॉट इन अवर माइंड, बिकॉज उनका कुछ और प्लान होगा. सो वी आर गोइंग विद अवर प्लान, एंड आई डोंट कंसीडर देम एज आवर कॉम्पिटिटर. क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हम ही कर पा रहे हैं, बाकी तो नहीं कर पा रहे. सो नाउ वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट वीकनेसेस. So whatever weaknesses we have, they don't have. NASA, right? So they have a lot of, but we also have good strength which they don't have, है ना? मैं अगर उनको कॉपी करूंगा तो I might not be successful because they have their own situation. So हमें सक्सेसफुल बनना है, बिकॉज अगर हम सक्सेसफुल बनेंगे तो सिर्फ एक इंसान सक्सेसफुल नहीं बन रहा, कंपनी नहीं सक्सेसफुल बन रही. सो द होल इकोसिस्टम, हमारे क्लाइंट्स भी सक्सेसफुल होंगे, पार्टनर्स भी सक्सेसफुल होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे. हमें बनना है, बट वी हैव अवर ओन सिचुएशन, है ना? वी हैव द स्ट्रेंथ. डेटा यूजर जितने हमारे वो किसी के नहीं है. द काइंड ऑफ एपीआई इंटीग्रेशंस व्हिच वी हैव वो किसी के नहीं है. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव इन डिफरेंट डायलेक्ट, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नो वन हैज इट. दैट्स व्हाई इफ यू सी we are partnered with all the big companies. अगर आप हमारा मीडिया presence देखेंगे, right? So you see Nvidia talking about us, Google talking about us, Microsoft talking about us. Honorable Prime Minister also spoke about us, and but I'm not saying we are successful because everyone is partnering with us. No. So these are the opportunities, and a lot of weaknesses. So we have to find our own truth and our own strategy to scale and grow. So other people raising investment, that never bothered me, because whatever we aspired, whatever we planned, we got it. So mm. now it's all on us to execute well and grow. फाइन. सो एक बात ये बताइए कि यू आर डीपली इन्वेस्टेड इन द इंडियन स्टोरी, द इंडियन अपॉर्चुनिटी. सो भारत में जो जनरेटिव एआई है, या मैं बियॉन्ड लाइक जनरेटिव एआई आल्सो ओवरऑल एआई की बात करूं, तो स्पेशली फॉर द रूरल इंडिया, फॉर द पुअरर इंडिया, फॉर द भारत, ये अपॉर्चुनिटी क्या है? मतलब हाउ डू यू सी दैट? और उससे जो एक आम आदमी है उसको जो है फायदा कैसे होगा, इसके बारे में बताएं. राइट. पहले थोड़ा अगर मैं मैक्रो पिक्चर बोलूं, अपॉर्चुनिटीज, सपोज सी वी कीप ट्रैवलिंग टू मैनी कंट्रीज मल्टीपल टाइम्स. इवन कुछ कंट्रीज जो 20 साल पहले ट्रैवल की थी, वो उसे अभी भी सपोज मैं अगर ट्रैवल करता हूँ 20 साल के बाद या 10 साल के बाद, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता. वो वहीं पे ब्रिज था 20 साल पहले, अभी भी वही है. स्टोर्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, है ना? सो कोई नया ब्रिज नहीं बना, कोई नई बिल्डिंग नहीं दिख रही है कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग तो पहले नहीं थी. ठीक है, वो ग्राउंड जीरो वाली एक एक्सेप्शन है ना? तो वहाँ पे उतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो रही. अब अभी मैं अभी आज गोवा से आ रहा हूँ, तो
इवन मैं गोवा शायद 6 महीने पहले भी गया था, 6 महीने और अभी में हम्म, डिफरेंस है, राइट? जम्मू इज माई होम टाउन, राजौरी इज माई से बर्थ प्लेस। मैं अगर वहाँ पे 3 महीने के बाद भी जाता हूँ तो आई सी द डिफरेंस। फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर्स है, right? तो गोवा में also see the wonderful flyovers being made. So मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया में the kind of the growth जो हो रही है वो बाकी कंट्रीज में उस तेजी से नहीं हो रही. So I'm not हम्म, saying we are the best. So हम्म, जो हम शायद ग्रोथ अभी कर रहे हैं वो शायद उन्होंने 100 साल पहले शायद की होगी किसी एरिया में. हम्म, So the credit is there wherever it is due, but हम yeah, ग्रो कर रहे हैं, राइट? सो अगर हम ग्रो हम्म, कर रहे हैं तो मीन्स हमें एक प्लेस एक्स से वाई में जाना है, तो डेल्टा इज देयर, सो वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर ऑन द बिजनेस साइड आल्सो. दूसरी sure, साइड जो जो गरीब लोग हैं, द पुअर, राइट? सो दे हम्म, आर आल्सो नाउ showing the aspirations, right? They are coming out of their villages in the cities. That's a separate problem, but they are aspirational and trying to do something. So yeah, इससे थोड़ा liquidation आएगा, and people are hungry to use हम्म, new technology. सोचते हैं कि हम्म, कुछ मेरे लिए है यहाँ पे क्या, है ना? हम्म, So people who have their belly full, so they are not हम्म, that hungry for new technology or innovation. They are happy. हम्म, So इंडिया में वो थोड़ी सी भूख है ज्यादा compared to हम्म, other countries. हम्म, I think after India, if I see Saudi, I think very वहाँ पे डेवलपमेंट काफी हो yeah, रही है अभी there. So इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, it's not on the infra side. So internal हम्म, individual side also there is fire की मुझे ग्रो करना है, कुछ नाम रोशन करना है या पैसे कमाने हैं, तो वो ज्यादा हो रहा है. उससे means people become more adaptable and they look out for new opportunities, products, applications, उसको यूज करो. तो काफी, हम्म, अब कोई भी अगर आप देख लो कि मुझे yes, लगता है I व्हाट्सएप saw के that. सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही होंगे, फेसबुक के भी इंडिया में होंगे. काफी कंपनीज सक्सेसफुल, ग्लोबल कंपनी सक्सेसफुल, दे हैव मोर यूजर्स हियर. तो हम ही क्यों नहीं कुछ अच्छा बना के, एक तो उनको फायदा हो जाएगा हमारे लोगों को, तो दूसरा वी विल आल्सो बी एबल टू मेक बिजनेस. टाइम लगेगा, बट दैट रिलायंस इज आल्सो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज, उन्होंने भी तो इंडिया से पैसे कमाए, राइट? सो तो इंडिया में पैसा है, बट इफ यू से कि क्विक मनी आएगी, वो शायद नहीं है. यू रियली हैव टू बी ग्राउंडेड, यू रियली हैव टू प्रोड्यूस समथिंग मीनिंगफुल. ऐसा नहीं है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी थी मैं भी कर देता हूँ, पीआर कर देता हूँ, वैल्यूएशन जंप हो जाएगी, फिर दूसरी, प्रॉब्ली दैट काइंड ऑफ जो गेम है, सो दैट पीपल आर एबल टू डू, बट ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल. बट इफ यू मेक रियल टेक्नोलॉजी, रियल बिजनेस, मनी वुड इज देयर. it might take time. तो मतलब आई थिंक इन ऑल एस्पेक्ट्स इंडिया इज गुड, बट मैं नहीं बोल रहा कि हम सिर्फ इंडिया में ही करेंगे. एज आई वाज सेइंग, आई थिंक बिफोर वी स्टार्टेड, we got our first customer in Europe, right? So we are feeling proud कि and trust me, when I was talking to ministry, so मैं उनको बोल रहा था कि so I really not thinking it's Corover has got a client in the Europe. It's India's AI is being now adopted in Europe. मुझे मुझे पता है कि सी इफ गवर्नमेंट हैज टू टेक वन कंपनीज नेम, इट्स अ बिग थिंग, राइट? सो मैंने बोला कि इट्स नॉट अबाउट मी, फॉरगेट अबाउट अस, इट्स नॉट बिल्ड बाय मी और द डेवलपर और कोर ओवर, राइट? सो इंडिया की टेक्नोलॉजी इज being sold to France, Europe, and no one just buys a technology just talking to one person, right? वो अपनी study करते हैं, right? So means they have checked across the globe and they selected a technology which is built in India. So that's something which, yeah. So we also have aspiration to grow globally, but India first, because एक तो हम इंडिया को समझते हैं और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी हैं. हम्म. So कौन से जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि अ, भारत जीपीटी का अडॉप्शन फास्टर हो सकता है या फास्टर हो? सॉरी, या हाँ, यस, आई हर्ड यू. सो आई थिंक आपने बोला कि कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि जहाँ पे भारत जीपीटी अडॉप्शन बढ़ सकता है. जी, अभी हमने देखा है कि ई गवर्नेंस की काफ़ी ज़रूरत है. सो
जब अगर मैं बोलूँ कि कुछ लोग गरीब क्यों हैं, अंडर प्रिविलेज्ड क्यों हैं, मुझे जो लगता है, आई हैव ए स्ट्रांग फीलिंग, वो इसलिए हैं कि दे डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, दे डोंट गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो अगर आप देखो क्यों गरीब के लोग क्यों हैं, मतलब हर लोगों को एक सर्विस तो चाहिए। मुझे सपोज अनाज चाहिए, मुझे कोई ऐसी काम चाहिए जो जिसमें मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सपोज मुझे फिजिक्स पढ़नी है, जो मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो कम्युनिटी में ये होगा जो फिजिक्स पढ़ाएगा मुझे। सपोज मैं टेक्नोलॉजी में, एआई में अच्छा हूँ, तो मुझे एआई अच्छी आती है, तो मैं उसको पढ़ाऊँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इफ वी हैव सो मेनी पीपल, राइट, आइडिया तो यही है ना कि डोमेस्टिकली ही वी हेल्प ईच अदर एंड वी आर सेल्फ सस्टेन्ड। मतलब कि बिजनेस कब आया, उसको बिजनेस का नाम क्यों दिया गया, दैट सेपरेट, बट आइडिया है कि वी हैव टू लिव एज ए सोसाइटी, है ना। कुछ चीज, आई हैव टू बी गुड एट समथिंग, ताकि मैं अपनी सर्विसेज बेच के दूसरों की सर्विस ले पाऊं, राइट। बार्टर सिस्टम वाज गुड, लेकिन मेरे पास वो तो एक सर्विस होनी चाहिए ना, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने की या सर्विस की या कुछ पढ़ाने की या किसी तरह की। तो मुझे लगता है कि और गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं, सो यू वुड बी सरप्राइज्ड। हमने गवर्नमेंट की हमने काफ़ी बेनिफिट्स लिए हैं। टू स्टार्ट विद कर्नाटका गवर्नमेंट में एक एलिवेट, आई थिंक यू आल्सो वर्क विद कर्नाटका गवर्नमेंट, हम एलिवेट विनर भी हैं। हमने 3 बार अप्लाई किया, फेल हुए, 4th बार किया तो हम सिलेक्ट हो गए, राइट। कुछ लोग बोलते थे भाई कोई लिंक्स चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं, बोलते हैं हम, हमने सोचा हो सकता है बट हमारे नहीं है, राइट। तो लेकिन जब हम जीते तब भी कोई लिंक नहीं थे, तब तब भी जीत गए, बट वी वर कंसिस्टेंट कि अप्लाई करेंगे। देन वी सॉ कि जब हमारे पास क्लाइंट्स मिले, ट्रैक्शन मिली, व्हेन वी कुड प्रूव कि हमारी टेक्नोलॉजी चलती है, तभी तो कोई लोग आपको ग्रांट देगा। तो वो हुआ, देन वी गॉट कॉन्फिडेंस, फिर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिली, देन फंडिंग भी मिली। फिर हम कुछ देखते रहते हैं कि फॉर्म भरते रहते हैं, जैसे हम फ्रांस में गए, ऐसा थोड़ी है कि कोई गवर्नमेंट आएगी बोलेगी हम फ्रांस लेके जा रहे हैं और तुम भी चलो, राइट। कोई 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 स्कीम कोई स्कीम निकालेंगे, राइट, कुछ व्हेन दे हैव टू, उनको पब्लिक करेंगे, यार किसी न्यूज़पेपर में, किसी वेबसाइट में डालेंगे, है ना। तो वो हम अगर हम देखते रहेंगे, हो सकता है कोई रिमोटेस्ट एरिया में अगर कोई वो फॉर्म भर देता, तो हो सकता है वो भी जाता हमारी जगह या हमारे साथ। समझ रहे हो, बस उन्होंने वो भरा नहीं। आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, बेटर देन अस। उन्होंने बस वो नोटिफिकेशन देखी नहीं होगी, है ना। उन्होंने नोटिफिकेशन देखी नहीं, उन्होंने भरा नहीं, और इनोवेशन रह गई। उनका कोई भी लिंक नहीं होता, कुछ नहीं, फॉर्म भरते थे, एक कॉल होती, इंटरव्यू होता, सिलेक्शन में आते। तो वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिली, शायद कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी। अगर मैंने पता नहीं है कि हिंदी में नोटिफिकेशन थी या नहीं, चलो इंग्लिश हिंदी कर लो। तो इंग्लिश 10% लोगों को समझ आती है इंडिया में, हिंदी भी अराउंड 45-50%, बाकी तो 40% 50% लोग हैं उनको नहीं पता, ही नहीं, पढ़ भी नहीं सकते, है ना। तो एवरीवन इज नॉट लिटरेट। तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए क्यों हैं। अगर मुझे काफी कुछ लोगों ने इन्वेंशंस की हैं जो विच वर नॉट एजुकेटेड, राइट। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, अब मैं अगर देखता हूँ कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो जेसी बोस ने दी थी, नाम किसी और का जुड़ा बाद में, बट ही वाज द वन हु हैज एक्चुअली क्रिएटेड वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर सीवी रमन इफेक्ट जो था, उससे जो आजकल जो गाड़ियां ऑटोमेटिक चल रही हैं, वो जो लाइडार बेस्ड, तो दैट इज बेस्ड ऑन हिज वर्क। तो आई थिंक अगर हम गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स जो बड़ी होलिस्टिक होती हैं, मैं बोल सकता था कि बैंकिंग इज वेरी क्रिएटिव सेक्टर, बिकॉज एक तो बैंक के पास पैसा होता है, और जो उनके यूजर्स हैं उनके पास भी पैसा होता है, तो इट्स इजी टू मेक मनी। ट्रैवल, बिकॉज पीपल स्पेंड व्हाइल दे ट्रैवल। लेकिन मुझे लगता है कि जब जब कोई बैंकिंग पॉलिसी सोचेगा तो दे विल ऑफ कोर्स थिंक अबाउट द सर्टेन कम्युनिटी। ट्रैवल सोचेगा तो वही सोचेगा कि यार इतने लोग ही ट्रैवल करते हैं। अगर कोई शेयर मार्केट है तो बोलेगा यार 5-6% ही लोग हैं जो मेरे कंज्यूमर्स हैं। जितनी भी B2C ई कॉमर्स है वो बोलेगी पूरा इंडिया है ही 6 करोड़ लोगों का,
राइट? वो तो उस तरह से सोचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा, राइट? गवर्नमेंट वैसी बनाएगा यार, तो पूरा इंडिया, और अगर वो पूरा इंडिया अगर इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो ऐसी मूवमेंट और एवोल्यूशन आती है, राइट, we would produce the services, products. I'm getting goosebumps. So, which would not just help India self-sustained, but also be able to give service outside. तो मुझे लगता है अगर ई गवर्नेंस को हम थोड़ा एक्सेसिबल बनाएं, गवर्नेंस को एक्सेसिबल बनाएं, पॉलिसी स्कीम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और हर बंदे को अपनी उनकी भाषा में अगर समझ आ जाती है टाइमली, है ना, एजुकेशन है ना, अभी एनईपी अच्छा है कि एक रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, फिजिक्स सिर्फ क्यों इंग्लिश हिंदी में, है ना, हर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो अगर मुझे अगर पढ़ना लिखना अगर नहीं भी आता, मैं नहीं कह रहा पढ़ना लिखना नहीं सीखना, सीखना है, वो बाद में शायद सोचें कि पढ़ना लिखना नेचुरल शायद है भी नहीं, वो इसलिए था क्योंकि वो वॉइस वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अभी है, लेकिन अभी है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता, सो दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, है ना, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता, बोलना सुनना तो आता है, तो उसी से अगर हम उनको जो नोटिफिकेशन आई थी, अगर वो बोल, उनको अगर हम बोला जाए उनकी लैंग्वेज में, उनको समझ आएगा, तो हाँ वो लिखे ना, बोले हाँ मुझे समझ आ गया, मेरे पास ये आइडिया है, मैंने किया था, गांव में ऐसा किया था, 10 लोगों को फायदा हुआ था, है ना, तो इसमें अगर मेरी सरकार मदद करती है या ऑर्गेनाइजेशंस मदद करती है तो स्केल स्केल कर सकते हैं। काफी गांव में हम देखते रहते हैं आजकल रील्स वगैरह में कैसी इनोवेशन हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ई गवर्नेंस में मुझे लगता है कि भारत जीपीटी का यूज हो भी रहा है, और इसको थोड़ा और अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइंस पहुंच जाएंगी, बाकी आहिस्ता आहिस्ता सारी पहुंच भी जाएंगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट वर्क थिंकिंग फॉर एवरीवन। वो सब तक पहुंचता नहीं है, पहुंचता भी है तो उनकी लैंग्वेज में नहीं पहुंचता। कुछ आप एग्जांपल्स दोगे कि जहां पर भारत जीपीटी का यूज गवर्नेंस में हुआ और उसका फायदा लोगों को हो रहा है, तो भी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल, जैसे एलआईसी में लोग पूछते हैं कि वहाँ की काफ़ी पॉलिसीज हैं, जीवन आनंद और जीवन साथ में क्या डिफरेंस है, प्रीमियम। जी मैं तो एक प्रिविलेज इंसान हूँ, राइट, इंडिया के टॉप 1-2% में आता हूँ, तो मेरी भी एल मुझे 3 एल पॉलिसीज हैं, और एक चौथी मेरी, जो मैं एल चेयरमैन से मिलने गया, वो पहले कहते पॉलिसी कर तो फिर मेरे से बात करना। मैं बोला ये बिजनेस का रंग सही है, तो जो आपसे मिलेगा उससे पहले आप पॉलिसी करवाते हो, तो एंड राइट, द चेयरमैन सो बिजनेस ओरिएंटेड, मैंने उनसे काफी सीखा। तो 3 पॉलिसीज मेरी पहले थी, एंड यू वुड नॉट बिलीव वो तीनों लैप्स्ड। लैप्स मतलब कि पता ही नहीं कब प्रे करना है, वो मैंने ऑटो सजेस्ट उसमें डाला हुआ था, वो पेटीएम में, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो, तो वो लैप्स हुई। तो फिर बाद में पता चला नहीं, लैप्स हुई हैं तो एक्स्ट्रा पैसे दे के वो हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन पेइंग फॉर अराउंड 20-21 इयर्स। आई थिंक एलआईसी जो अधिकतर यूजर्स का वही हाल है। इफ यू आस्क मी, आई हैव पॉलिसीज, अभी मैं देख रहा था मेरे पास 3-4 है, लेकिन मुझे ही नहीं पता क्या है, कब की है, कब लैप्स हुई, हाँ कुछ हाँ नहीं पता। हाँ हाँ, है ना, कोई एक है ना, एजेंट आएगा, वो मुझे एक और बेच के जो चला जाएगा, ये पता ही करेक्ट नहीं। करेक्ट। अच्छा एक चीज और, अब जो मैंने पॉलिसी ली थी, जो चेयरमैन सर ने मुझे बोला था पॉलिसी ले लो, मैंने पॉलिसी दी थी, मैं आया हूँ सर से मिला हूँ, तो पॉलिसी तो मैंने कितनी, मैंने यूपीआई से किसी को 15,000 रुपये ट्रांसफर, कहते 15,000 रुपये, मैं ठीक है ये वाली 15,000 रुपये दिया, और मुझे वो फोन करता रहा होगा, मेरे पास नंबर स्टोर नहीं, तो फोन तो बड़े आते हैं, तो कभी कभी उसने मैसेज भी बोला कि सर आपने पैसे तो दे दिए, फॉर्म भी तो भरना है। मैं बोला फॉर्म की डिटेल भेज दे, मैं भेज देता। उस फॉर्म की वो मुझे लगता है 100 चीजें थी, सिबलिंग्स का नाम, उनकी हाइट, उनका वेट, आप समझ रहे हो, मैं अपने नाम पे पॉलिसी ले रहा था, मेरे ब्रदर सिस्टर की भी डिटेल्स मांगी हुई थी, हाइट और वेट के हिसाब से। वो जब भी बोले मैं बोला हाँ, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ, फिर मैं जब फॉर्म देखता मैं ये नहीं हो पाएगा, एंड मतलब उसको 5-6 महीने हो गए होंगे, अभी मैंने कल देखा तो वो पैसे वापस आ गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चीजें तो अच्छी हैं, वी शुड टेक द पॉलिसी, और कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए अब। सो वो हमने एक एआई एजेंट बनाया, आप कंपेयर कर सकते हो अपनी पॉलिसी, चेक प्रीमियम चेक कर सकते हो, ड्यू तो नहीं है, पे कर सकते हो, ये एलआईसी में। फिर एनपीसीआई में डिजिटल लिटरेसी के बारे में कि क्या होता है, रुपे कार्ड क्या है, ई रूपी क्या है, यूपीआई क्या है, डिफरेंस क्या है,
तो उसमें काफ़ी लोगों का वो क्वेरीज होती हैं। तो फिर आईआरसीटीसी में तो लोग बोल के टिकट बुक करवा रहे हैं, राइट? सिर्फ पीएनआर स्टेटस नहीं कि मुझे बैंगलोर से दिल्ली की परसों की ट्रेन टिकट बुक करवाओ। बड़ा आसानी से, ठीक है, पासवर्ड नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। नहीं तो होता है ना, पासवर्ड हमेशा भूल जाते हैं। तो वी मेड थिंग्स वेरी सीमलेस। अगर सपोज किसी तरह से अगर बुकिंग नहीं हुई, अगर आपने कैंसिल कराया, तो आपको 3 से 5 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये फिर सेबी में सेवा है, आज सेवा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए नहीं, रिस्क है या नहीं। फिर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में कोई भी आपको सिविक इंफॉर्मेशन है वो पूछ सकते हैं। फिर ई सेवक हमने किया गवर्नमेंट में, आई थिंक दैट्स गुड एग्जांपल। क्या होता है कि सपोज अब कोई समस्या है कि मेरे घर के बाहर कूड़ा है, या मैं देख रहा हूँ मेरे घर के बाहर 2 लोग सस्पिशियस हैं, या कुछ 2 लोग लड़ रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। जाना भी है तो किसको कंप्लेंट देनी है ना? अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आप किससे पूछोगे कि बिजली कब आएगी, है ना? तो कुछ लोग नंबर रख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो पता नहीं फोन उठाते भी हैं या नहीं उठाते। तो मैं हमने एक ई सेवक बनाया, कन्वर्सेशनल ग्रीवियंस सिस्टम। आप बोलो ये प्रॉब्लम है, अब सपोज मेरे घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, क्या करूं? तो फिर हम उसकी लोकेशन के हिसाब से वो हम देख लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट, उसने बोला जो है, हम कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में ये इशू जाना चाहिए। तो उस डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे रहता है, ये उसकी ये समस्या है, टिकट नंबर असाइन हो जाएगा। तो वो बोल देगा कि या तो अपनी टीम को भेजेगा, या बोल देगा कि हाँ हमें पता है 1 दिन में ठीक हो या 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो गया, गेट्स अपडेट। तो यूजर उससे मिल नहीं पाएगा, फोन नंबर नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट को पूरा पता है कि किस तरह की समस्या अपने आप ठीक हो रही है या नहीं हो रही। तो ये इसे वर्क ऐसे, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कन्वर्सेशनल एजेंट्स क्रिएटेड। चेन्नई पुलिस के लिए हमने, अब हर बंदा सपोज पुलिस में जाने से डरता है, पुलिस स्टेशन जाने से। मैं खुद डरता हूँ अगर कभी जाना भी पड़े, तो राइट। तो पता नहीं वो क्यों डर लगता है, वो समझ नहीं आया। आई थिंक इट्स इनग्रेव्ड इन अवर डीएनए। उससे शायद उससे हो सकता है, फिल्मों से फर्क पड़ा होगा। तो हमने क्या किया, हमने पुलिस, चेन्नई पुलिस की एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का हमने डिजिटल ट्विन बना दिया, और वो हमने कियोस्क में मरीना बीच के अंदर वहां पे रख दिया। तो आप बात करो, पुलिस है यहाँ पे, सामने नहीं है, आप बात करो, कंप्लेंट करनी है, पूछना है, तो वी मेक दैट वर्चुअल वर्जन ऑफ पुलिस। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग चीजें की हैं, विच स्किल इंडिया के लिए किया था कि आप पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपके साथ नियर ट्रेनिंग सेंटर्स कौन से हैं। रजिस्ट्रेशन हम ऐसे करते थे कि एक रियल लेडी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि एज इफ कि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक रिसेप्शनिस्ट को दे रहे हो और आपकी ऑनबोर्डिंग हो रही है। ऐसा नहीं है फॉर्म दे दिया और 50 फॉर्म फील्ड का तो आप देख के डर जाओगे, फिर बोलोगे एजेंट लाओ जो फॉर्म भरने के लिए। तो काफी काफी यूज केसेस किए हैं हमने। श्योर। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। तो द जो आप जो कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस एक अपॉर्चुनिटी है, बट गवर्नमेंट में अभी भी काफी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिजिटल नहीं है, या इन कंप्लीट डिजिटल है। बहुत सारा डेटा जो है वहाँ पर पेपर्स में है, चीजें में है। तो अगर आपने वहाँ पर कन्वर्सेशनल एआई लगा भी दिया, पर जो वो इंफॉर्मेशन अगर हमारी जो है डिजिटल नहीं है या राइट फॉर्मेट में नहीं है, तो हाउ डू यू लाइक हैंडल ऑल दोज इश्यूज? या अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। तो हमने जब शुरू में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो उसका नाम रखा था चैटबॉट एज ए सर्विस। तो पहले चैटबॉट बोलते थे, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट बोलना शुरू किया, अब उसका नाम एआई एजेंट हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स एआई एजेंट ने काफ़ी एक्स्ट्रा भी काम करना होता है, वो हम करते हैं अपने कन्वर्सेशनल एआई एजेंट में। तो मतलब इट्स रियली एजेंटिक, मल्टीपल सिस्टम से बात करता है, मल्टीपल एजेंट से बात करता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि
आप हमें पैसे दो, और बाकी डोंट वरी आपके पास डेटा है या नहीं, आपका बैकएंड सिस्टम है या नहीं, आपके पास एपीआईज है या नहीं. वी डिड नॉट जस्ट गो एज ए प्रोडक्ट कंपनी. क्या होता है कि प्रोडक्ट कंपनी है, दिस इज माय प्रोडक्ट, है ना, टेक इट और लीव इट, छोटी मोटी कस्टमाइजेशन हो जाएगी, बट दिस इज द प्रोडक्ट वी नो. हम ऐसे अप्रोच में नहीं गए. हमारे पास प्रोडक्ट था, हमने बोला ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट, दिस इज द कैपेबिलिटीज वी हैव, बट वी आर नॉट हियर टू सेल द प्रोडक्ट. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड गिव यू द सोल्यूशन. 80% होगा कि वो सोल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट से बनेगा. अगर 20% हमें उसके लिए कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, न्यू डेवलपमेंट, कोडिंग, मिडलवेयर बनाना पड़ा, एपीआईज बनानी पड़ी, बैकएंड सिस्टम बनाना पड़ा, डेटाबेस बनाना पड़ा, हम बनाएंगे. आपको एग्जांपल देता हूँ. जीआरएससी हमारा क्लाइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो गार्डन रीच है, जो वारशिप्स बनाते हैं. तो उनके लिए हमने यही एचआर असिस्टेंट बनाया है. तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था, उनका डेटा इट्स वेरी क्रूशल, इंपॉर्टेंट डेटा, एपीआईज, और उनका वो एसएपी यूज करते थे. उनके पास एसएपी का शायद एपीआई वाला लाइसेंस नहीं था, दे कुड नॉट गिव अस एपीआई, और कुछ रीजंस होंगे. डेटाबेस से भी हमें अलाउ नहीं कर, बिकॉज डेटाबेस काफी कॉन्फिडेंशियल है. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो जो डेटा हमें चाहिए वो आप फ्लैट फाइल में इस सर्वर में रख दो, एंड देन वी विल राइट अवर ओन मिडलवेयर, विल इंजेस्ट दैट सिस्टम into our platform on daily basis. फिर जो हमारा ये असिस्टेंट है उससे बात करेगा. तो वो इंटीग्रेशन चैलेंजेस थे, फिक्स किए. फिर जैसे एक डिजी साथी है, तो उसमें एंड टू एंड सिस्टम बना, उसमें वेबसाइट भी बनी. जैसे ई सेवक है, तो आइडली क्या होता कि हम जो गवर्नमेंट का जो ग्रीवेंस सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करते. हमने ई सेवक एक दिन में बनाया. तो हमने बोला कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा तो है. आपने सब ऑफिसर्स के फोन नंबर और नाम देने हैं, और उनका डिपार्टमेंट देना है, लोकेशन देनी है, तो हमारा ये बैकएंड है, उसी में हम इंटीग्रेट कर देंगे. आप आप हमारे डैशबोर्ड में लॉगिन करके डेटा ले लो. सो वी गेव देम एंड टू एंड. उन्होंने हमें सिर्फ एक्सेल शीट में डेटा दिया था. और सपोज जैसे आईआरसीटीसी में भी किया था, तो हमने शुरू में बोला आप कुछ मत दो, हम आपका ऑलरेडी, गवर्नमेंट में क्या है कि उनके वो प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पहले बनती है. प्राइवेट में उल्टा है, पहले प्रोडक्ट बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनेगा. उनके पास डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन है, डिजिटाइज शायद नहीं होगी. तो हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दे दो. फिर जब शुरू करने लगते हैं, वो लगते हैं यार बड़ी एक्साइटिंग चीज है, देन ऑल पार्टिसिपेट. वो बोलते नहीं मेरे पास और है, देन ऑल डिपार्टमेंट, एवरी एम्प्लॉई गिव्स. फिर हम बोलते हैं कि चलो पब्लिक को लॉन्च करने से पहले चलो सारे पहले एम्प्लॉई टेस्ट कर लो. तो जब वो टेस्ट करते हैं तो देन वी गेट लॉट ऑफ नॉलेज कि यार ये चीजें तो हमने सोची नहीं थी, है ना. वो और एनरिच होता है जब यूएटी चल रही होती है. So to answer your question, if any government organization have the system, we will integrate. API से है तो बड़ा seamlessly integrate हो जाएगा, नहीं तो database integrate हो जाएगा, नहीं तो file system से हो जाएगा, नहीं तो कोई भी PDF, website scraping, everything सब कुछ हो जाएगा. So that we have written those tools कि आप किसी भी तरह का डेटा, structured है, unstructured है, किसी भी तरह से आप डालो, and it will work. ऑफ कोर्स उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है. जब हम वो टेस्ट करते हैं तो फिर उसको हम थोड़ा बेटर. अच्छा, एक बात ये बताइए कि बहुत सी कंपनीज है कहती हैं कि वर्किंग इन द गवर्नमेंट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी टू ऑलवेज बी द L1 टेंडर्स, बिकॉज वहाँ पर कॉस्ट हमेशा L1 पे आ जाती है. फिर एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है तो फिर पेमेंट्स लेने में दिक्कत होती है. ऑल द इश्यूज पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, तो सी हमने काफ़ी टेंडर्स जीते, काफ़ी हारे भी. और L1 वाला वो तो चैलेंज है. लेकिन अभी टेक्नो कमर्शियल RFPs आ रहे हैं, तो वे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो यूजली गवर्नमेंट में भी टेक्निकल मार्क्स अराउंड 70% वेटेज उसको दिया जाता है, और 30%, कई बार 80 भी होता है. तो अगर आप टेक्निकली बेटर हो, तो अगर आपका प्राइसिंग ज़्यादा भी है तो यू विल स्टिल गेट क्वालिफाइड. लेकिन वो एक चैलेंज यहाँ से थोड़ा मीट हो रहा है.
लेकिन लोग गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं और समटाइम्स अदर कंपनीज आर आल्सो नॉट फेयर. Government is fair. Other companies or maybe the competitors are probably not fair to quote the fair price. आप समझ, गवर्नमेंट के काम करने से यू डोंट जस्ट गेट द मनी पार्ट, यू गेट राइट द क्रेडिबिलिटी, यू गेट द स्केल. राइट, अगर हम किसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमने काफी स्केल को हैंडल किया है, सिक्योरिटी हैंडल की है. तो एक दूसरे कस्टमर के लिए तो लगता है यार तुमने वो वाला कर दिया है, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स डू अवर प्रोडक्ट. तो उस रेफरेंस को लेने के लिए कुछ लोग काफी कम प्राइस डालते हैं. वो एक चैलेंज अभी भी है. टेक्निकल मार्क्स से शायद थोड़ा फर्क पड़ता है, बट स्टिल वो कैसे ब्रिज होगा, मुझे लगता है वहां पे भी फेयर प्राइसिंग आनी चाहिए. ज्यादा ज्यादा में तो पेनल्टी है बिकॉज समवन विल बी आउट, कम में भी पेनल्टी होनी चाहिए. राइट, सो वी शुड हैव सम हेल्दी कंपटीशन. उसमें लॉ क्या बोलता है अभी मुझे पता नहीं है. तो राइट, तो कई बार होता है कि 4.5 करोड़ का टेंडर है और रिवर्स एक्शन होता है, लोग 1 लाख रुपए डालते हैं, उसको ले लेते हैं. राइट, तो और उन्होंने ही पहले 4 करोड़ सपोज डाला होता है. राइट, मैं अपनी भी बात करूँ, हम इतना नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या था और ये क्या है. सो देयर शुड बी सम गाइडेंस. सम, ये नई चीज आई है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना. पहले ठीक है, अगर ब्रिज बनाना है तो भाई पता है कि इतना स्टील का कास्ट है, इतना सीमेंट का कास्ट है, इतना मैन पावर का कास्ट है. सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इंटेंजिबल है, वो इतना दिखता नहीं है. कुछ कंपोनेंट्स लोगों के पहले होते हैं, मैन पावर कितना लगेगा बिकॉज इट इज नो फिक्स थिंग. लेकिन कुछ तो एक मेथड होना चाहिए टू फाइंड आउट. पीपल शुड नॉट गो बिलो. फिर ऐसा क्या होगा कि जो कैश रिच कंपनी है वही वही जीतती रहेगी. टेक्निकल वाला एक कवर है, लेकिन सपोज कोई कंपनी टेक्निकली सेम है और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, सो दे कैन विन ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएट ग्लोबली. वो अभी इतना इशू नहीं है. अभी जितने भी इंस्टेंसेस मैंने बोल रहा हूँ तो एक दो ही हुए होंगे, लेकिन इसको एड्रेस करना थोड़ा जरूरी है. अभी इसमें बात नहीं हो रही, आपने ऐसा पूछा तो मैंने बोल दिया इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न, बट वो कंसर्न बन सकता है. और दूसरा पेमेंट का कोई इशू नहीं है. पेमेंट का बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ एमएसएमई गाइडलाइंस वो 40 हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि 45 डेज का, वो जीरो इश्यूज ऑन द पेमेंट साइड फ्रॉम गवर्नमेंट. अच्छा, एक बात बताइए कि नाउ एआई इज अ फ्लेवर ऑफ द सीजन and every day like there is a AI startup like coming up and funding is happening, funding is available, it seems as a thing. So what's your view about the जो इंडिया का जो एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है या ओवरऑल एआई का इकोसिस्टम है, तो अभी हम लोग किस स्टेज पर हैं कंपेयर टू अवर ग्लोबल इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है. सो हम लोग किस स्टेज पर है और हमारे लिए व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर आवर चैलेंजेस एज एआई स्टार्टअप्स. राइट, सो इसमें मेरा थोड़ा सा रेडिकल व्यू है. मुझे लगता है कि वी आर एक्चुअली द लीडर्स. हम उसको शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और उसको मान नहीं पा रहे. मतलब हमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या उसको फोमो बोल लो. हमें ऐसा लग रहा है कि हम रेस से पीछे जा रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक का ज्यादा नाम हो गया. तो उसके कारण मुझे लगता है कि हमें वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है काफी लोगों को, और फोमो हो गया है. लेकिन आप उन्हीं को भी अगर आप सोच लो, सी दे आर द एक्चुअली द प्लेटफॉर्म्स. उसका क्या मतलब है कि चैट जीपीटी एक डायरेक्टली एक एंड यूजर कंपनी को तो कम बिजनेस दे रहा है. मींस एक्चुअली क्या होता है रियल लाइफ में, अगर मुझे जीना है, राइट, मुझे खाना खाना है, हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ट्रैवल भी करना है, घर भी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी, है ना.
जो अभी मैंने बोला है, इसमें तो अभी वो चैट जीपीटी इतना प्रेवलेंट तो नहीं है अगर मैं इंडिया की बात करूं, जेमिनाई, डीप सीक, तो फिर अभी टच ही कहाँ हुआ। आप समझ रहे हो, बेसिक मुझे रहने के लिए जो जो बेसिक चीजें चाहिए, तो वो अभी इतनी डिसरप्ट तो नहीं हुई। अभी वो हमें क्यों लग रहा है वो बढ़ गई, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ गई है ना। उसको यूज करने के लिए डेवलपर्स यूजर्स बढ़ गए, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू क्रिएट, कोई कंटेंट बना दिया, एक न्यूज़पेपर अपने आप बना दिया, आर्टिकल बना दिया, उससे क्या होगा। आर्टिकल एक बनाने से मेरा बेसिक वाला तो नहीं हुआ ना, 100 आर्टिकल एक और हैं, दो और भी आगे। जब बेसिक सर्विस जो यूटिलिटी है वो इतना अभी डिसरप्ट या उतना बेनिफिट उसने अभी इस टेक्नोलॉजी का नहीं लिया ना, तो देन everyone is open to be leveraged by these kind of companies। अगर मैं थोड़ी इंडिया की बात करूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारी आज दिशा तो मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, वैल्यूएशन कम होगी, रेवेन्यू कम होगा, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को, जैसे अभी हम, अगर आपने थोड़ा मीडिया देखें तो हमने एक परफेक्टी के साथ एक ऐसा हमने टेलीफोनी एजेंट लॉन्च किया है रूरल पीपल, राइट, फोन में चलता है वो बिना इंटरनेट के। तो वो बाकी हाई वैल्यूड कंपनी ने तो नहीं किया। तो और फिर हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम टेक्नोलॉजी के पैसे मत दो, इम्प्लीमेंटेशन के भी मत दो, मंथली सब्सक्रिप्शन भी मत दो, जब तुम पैसे कमाओगे हमारी टेक्नोलॉजी से तब देना। एंड वी डिड दैट, देयर हैप्पी, और अल्टीमेटली आई टेल यू वी हैव मेड मोर मनी। जब अगर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के पैसे लेता तो कम लेता, अब मैं रेवेन्यू शेयर ले रहा हूँ वो थोड़ा ज्यादा है, और उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई पैसे देने में, कि बोले कि टेक्नोलॉजी तो फ्री मिल रही है, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो तब मिलेगा। सो इट्स काइंड ऑफ कॉल्ड एज सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट सेलिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सक्सेसफुल हमें लग रहा है कि अब डीप सीक का रेवेन्यू कितना है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, या होगा तो क्योंकि वो ओपन सोर्स ही कर दी, तो नाम बढ़ गया गुड लोगों को। पहले हम बेचते थे, मुश्किल होता था, हम बताते थे एआई क्या होता है, कन्वर्सेशनल एआई क्या होता है। अब ये है कि फायदा हो गया हमें कि पीपल आर अवेयर अबाउट इट। उन्होंने जो पैसे कमाए, दे हैव नॉट मेड एक्चुअल मनी बिकॉज ऑफ द रियल यूज केस विच सोसाइटी नीड्स इन द ऑन द डेली बेसिस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, खाना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल, है ना। तो वो एक ऑक्सिलरी, एक फ्यूचरिस्टिक यूज केसेस, पीपल आर ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, बिजनेसेस आर ट्राइंग, है ना, कि ठीक है अभी मैं पीपीटी पहले हाथ से बनाता था, अभी ऑटोमेटिक बन रही है, मेरा 3 घंटे बच गए, है ना। तो आप उससे आपका डेली वाला वो, दैट्स ऑलरेडी, आई डोंट नो वेदर दैट वाज रियली द रिक्वायर्ड सर्विस टू क्रिएट पीपीटी एंड ऑल, सो दैट्स नॉट द रियल यूटिलिटी। आई थिंक बिजनेस बिजनेस की है एंड ऑल दैट, राइट, पीपल तो शेयर मार्केट से भी, आर्बिट्रेशन से भी पैसे कमा रहे हैं, वहां पे रियल वैल्यू क्या है, आप समझ रहे हो, दैट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग टू एक्चुअली। मैं नहीं कह रहा कि शेयर्स की वैल्यू नहीं है, मैं कह रहा था जैसे एनएससी में खरीदा, बीएससी में बेच दिया, सो इंट्राडे में ना शेयर खरीदा ना बेचा, सो जस्ट विद द डिफरेंस यू आर मेकिंग मनी। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी विदाउट एक्चुअली एडिंग value, and probably that's happening with these inflated products। actual value इनका है, people are trying to find, तो अभी भी they are trying, तो हम we can catch up very fast on identifying, but the baseline is also we have a highest adoption of AI use cases, maybe the virtue of the population, maybe because we are adaptable to use the technology। तो हम लीडर हैं, ये हैं, और ये सोचना भी चाहिए, एंड वी ट्राई टू बी इन द फोर फ्रंट एंड थिंक मोर एंड क्रिएट राइट यूज केसेस विच आर एक्चुअली बेनिफिटेड बाय, शुड बी बेनिफिशियल बाय दिस द सिटीजन्स एट लार्ज। सिटीजन्स को फायदा मिलेगा तभी बिजनेस पैसे कमा पाएगा ना। एक बिजनेस को खुश करके आप पैसे ले भी लोगे, अल्टीमेटली अगर उसने Hmm. अपने कंज्यूमर्स, सिटीजन्स, Sure. उसके यूजर्स, कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं पहुंचाया, एक then it's आपसे all ये fake सवाल है कि money, इंडिया इज you're नाउ just doing द probably business हाईएस्ट to business transaction। level, at the level of the honorable PM itself, like he's talking about AI a lot.
and the Ministry of IT is like talking about AI a lot, and almost every like top officer is now talking about AI. What has to be the priorities for AI in India at policy level? तो आपका मतलब आपको कोई अगर सजेशन देना हो, चाहे आपकी जो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आपका अगर एआई एडॉप्शन इन द गवर्नमेंट पे कोई सजेशन देना हो तो आपका सजेशन क्या हो? थैंक्स। सो मुझे पता है कि आप सजेशन राइट जगह पहुंचा भी सकते हो। तो मुझे लगता है कि सी वी हैव टू वॉक द टॉक। अगर हम बोल रहे हैं कि वी आर लीडर्स इन एआई, मैं तो बोल रहा हूँ, सो अदर्स आल्सो शुड से वी आर द लीडर्स, राइट? वी कैन प्रूव इट विद द डेटा, राइट? अगर डेटा के हिसाब से कर लो, डेवलपर्स के हिसाब से कर लो, वैल्यूएशन के हिसाब से मत करो, बिकॉज दैट्स एनीवेज नॉन रियलिस्टिक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो रियल डेटा के बेस में करोगे तो वी आर लीडर्स। और हमारी जो, मैं अगेन ई गवर्नेंस में आऊंगा, तो हर वेबसाइट, मैं अभी नहीं बोलता कि उसको रिप्लेस कर दो एआई से, रखो वेबसाइट, एक कन्वर्सेशनल एआई एजेंट डालो, चाहे वो इंग्लिश में हिंदी में है। पहले गवर्नमेंट से स्टार्ट कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट हर चीज सोच के बनाता है। गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज आर गुड, वो तो सब जगह पहुंचे, उनकी लोगों की भाषा में पहुंचे, वॉइस से पहुंचे, है ना? सो एवरी वेबसाइट शुड हैव दिस कन्वर्सेशनल एआई एजेंट, मल्टीलिंगुअल, वॉइस इनेबल्ड। सो दैट इज वेरी वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम पूरी वेबसाइट्स को एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन में भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में we can give a tool where all websites of government would have this conversational AI agent। डेटा की जरूरत नहीं है, जो भी वेबसाइट में डेटा है वो अपडेटेड है। इंडिया की जो पीआईबी है, द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, इंफॉर्मेशन तो इमीडिएटली आती है। इवन तो कई बार मैं सोचता हूँ कि ये अभी तो इवेंट हुआ, इवेंट चल भी रहा है, तो इतना जल्दी वो कैसे आ गया मीडिया में, राइट? पीपल आर वेरी वेरी फास्ट इवन इन द गवर्नमेंट। इतनी जल्दी आप देखो, कोविड में कितनी कितनी जल्दी एसओपीज बने थे। लोग बोलते हैं टाइम लगता है गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनने में, मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं देखा। वी हैव गॉट फ्रॉम आइडिया टू द प्रोडक्ट, वी हैव डन दैट इन वन। हमने गवर्नमेंट में एक हफ्ते में पैसे भी आए हैं। यहाँ पे इंटेंट है, वहां पे एक्सिक्यूशन है। और यहाँ पे वो इंडिया इज वेरी वेरी नाउ फास्ट, राइट? लोग लिटरली 24 घंटे काम करते हैं, सैटरडे संडे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नाउ, इफ यू सी द ब्यूरोक्रेट्स एंड द मिनिस्ट्री एंड एवरीवन। तो आई थिंक सिंपल इज, जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, वेरी सक्सेसफुल, आई लाइक देम। तो उसमें इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहती, राइट? अभी खुद भी ट्राई करके देख लो। सो राइट, तो अगर गवर्नमेंट के पास वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो या तो हम एक एआई एजेंट बनाए ई गवर्नेंस का, विच हैज ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स इन वन एजेंट। और जो अपनी अपनी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अपडेटेड है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट में अपडेटेड रहती है। वो मैंने कभी देखा है। सपोज अगर कोई लीडर मिनिस्टर चेंज होता है, तो अगले दिन वेबसाइट चेंज होती है, राइट? तो उसमें हम एजेंट लगा देंगे, वील टेक डेटा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट ओनली, एंड वी विल मेक इट एक्सेसिबल। जो पीपल विद visual disabilities and even people who have challenge in reading, writing and other languages, so information dissemination और access वो तो हम जल्दी करें, Fantastic. फिर then So आपने we बहुत will अच्छा input add दिया, more बहुत use अच्छा cases आपसे and more इस बात sectors to करके बड़ा अच्छा लगा। और आप एक बार हमारे एक कॉन्फ्रेंस में आए भी हैं जो लखनऊ में। सो आपने जो हम लोगों का देखा कि हम लोग ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंसेस ऑल अक्रॉस इंडिया जो है करते रहते हैं इनकी कोलैबोरेशन विद द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसके बारे में कोई आपका फीडबैक सजेशन तो आप बताएं। सर, मैं कई बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाता हूँ, तो उनको अवार्ड मिला होता है, और उसमें इलेट्स लिखा होता है, एंड आई फील दैट वेरी हैप्पी। एंड इनफैक्ट the officer, the ministers and the bureaucrats and IAS officers, I think they also boast about it, they got award from you। वो पता नहीं किस फोरम में उनको अवार्ड मिला होगा, but I have seen they getting award from you, and उन्होंने अपनी गैलरी में रखा होता है। And I have seen you being in Ladakh, आप
you are in Karnataka, UP, irrespective who's which party is running the government. I think maybe I'm just thinking you are citizen oriented. आपको लगता है कि लोगों का फायदा होना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आल्सो थिंक्स द सेम वे, किसी की पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, एंड यू जस्ट बिकम द मीडियम to convey the government policies and to the citizens, and vice versa. जिस तरह की debate होती है, and I have seen so the top leaders I have seen coming in your platforms. So it's very very healthy. I think अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा, राइट? मुझे लगता है वो जो जब मैं देखता था कि जब दो प्रेसिडेंट यूएस के आते थे एंड डिबेट करते थे और मीडिया के आंसर्स देते थे, मुझे लगता था यार इंडिया में भी वैसा ओपन होना चाहिए कि जो डिसीजन मेकर्स हैं दे शुड डिस्कस नॉट जस्ट विद देमसेल्व्स विद द पब्लिक. आई थिंक वो प्लेटफॉर्म आप देते हो, मैंने वो लिटरली देखा है. सो आई थिंक सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक मुझे सब कुछ पता है, राइट? अभी भी कई बार लोग बोलते हैं यार मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है. सो सर ट्रस्ट मी, उसकी एक वैल्यू है, लेकिन शायद इतनी भी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको एक विजडम देता है, कंसेप्चुअल स्किल्स देता है, बट यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट 30 इयर्स. हो सकता है कि जो 3 दिन में या 3 महीने में हुआ, तो हो सकता है उसको अगर आप यूज करोगे तो वो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाएगा, बेनिफिट करेगा. तो दोनों चीजें चाहिए. तो आई थिंक दिस टॉकिंग ऑन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, talking what's happening in other countries, what other companies are doing, ये बहुत important है कि हम बस ये सोचें कि हम ही बेटर हैं, हमारे पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी 5,000 साल पहले, वो थी, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, राइट? हम भी बना रहे हैं, बाकी भी बना रहे हैं. सो कोलैबोरेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टॉकिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है वो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, विच इज आई हैव नॉट सीन अदर्स डूइंग इट, काइंड ऑफ मोर ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन. थैंक्स फॉर दैट फीडबैक, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड रियली जो आपका एक्सपीरियंस बोथ इन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट जो हो रहा है, और एंड द वे you are bringing it like together and making our government more efficient, so that's like commendable. और great to hear कि according to you that India is a leader in AI. I think ये जो मैसेज है इसको और प्रोपोगेट होने की जरूरत है. और yeah, so I enjoyed talking to you, and thank you for joining us. Thank you so much, sir. Really great talking to you. You really made me think, and you have reinforced my thinking, and जो मेरे internal questions थे, you have asked those questions. So I think that's a wisdom. Thank you so much. Thank you.